Hello, good morning, students. Today you will read lesson 12 types of houses. Students, in this lesson you will read why do we need a house? What are the different types of houses? What are the different materials used to build houses? Now, students, tell me one thing. Which place do you consider the best for living on this earth? Can you imagine? Yes. And in which place do you feel the most comfortable? Yes. And in which place protect you against heat, rain, cold winds, and thieves? And very important question, in which place do you get the love and affection of your family? Yes, students, answer to all the above questions in one word. Yes, answer is house. None other than only our house. Students, जो हमारा घर है वही हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, वहीं हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती. Yes, bricks and stones do not build a home. It is the people living in a house who make it a home. Okay, now let's start reading. Come to the page number 85. Heading number 1, different types of houses. How many different types of houses do you see around you? We see mostly pakka house around us. These are made of bricks, cement, iron, steel, wood, and stone. People living in cities, towns, and many villages live in pakka houses. Pakka houses are very strong and last many years. These houses may be single story houses or multi-story building. Now you can see here. Yes, single story houses and multi-story building. Nowadays, we see more of multi-story buildings. Some multi-story buildings are more than 30 stories high. Each story has a number of houses called flats or apartment. Some people own large houses with lawns around them. These houses are called bungalows. अभी हम कहीं पे भी जाते हैं तो आपको रोड पे खूब बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती होंगी, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं. यस, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन्हें कहते हैं. और इन बिल्डिंग्स में हर स्टोरी में कई सारे हाउसेस होते हैं जिन्हें हम फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स बोलेंगे. ओके, और जिन हाउसेस में अपना खुद का गार्डन होता है, लॉन होता है चारों तरफ, वो क्या कहलाते हैं? बंगलो कहलाते हैं. ओके, देयर आर मेनी पीपल इन विलेजेस who cannot afford pakka houses. They live in kacha houses made of mud, bamboo, and straw. Leaves of coconut or palm, grass, and mud are used to make the roofs of these houses. Villages में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पक्का हाउस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो वो किस तरह के हाउसेस में रहते हैं? कच्चे हाउस में रहते हैं, जो किससे बना होता है? बैम्बू से बना होता है, स्ट्रॉ से बना होता है, मड से बना होता है, और इसकी जो रूफ होती है
वो कोकोनट, पाम, ग्रास इन सब की लीव्स से बनी होती है एंड दे आर कॉल्ड हट्स। ये सब क्या कहलाती हैं? हट्स कहलाती हैं। ओके, इन cities, the poor people cannot afford a good house. They live in juggies. They are very small houses made of easily available and cheap materials. Such a group of houses in an area with highly hygienic conditions is called a slum. और जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? झुग्गी में रहते हैं। और ये झुग्गी जो होती हैं ये बहुत ही सस्ते मटेरियल से, बहुत ही आसानी से जो अवेलेबल हो जाता है मटेरियल, उनसे बनाई गई होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? स्लम कहते हैं। नाउ सम अनयूजुअल हाउसेस इन हिली एरियाज लाइक शिमला, मनाली, where there is heavy rainfall and snowfall. The houses are made of wood and stones. जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है, हमेशा बारिश हुआ करती है, हैवी रेनफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है, वहाँ के जो हाउसेस होते हैं वो ज़्यादातर वुड और स्टोन के बने होते हैं। Nowadays, Pakka houses are being built which are plastered with waterproof materials. These houses have slanting roofs for the rainwater and snow to slide down easily. आजकल के जो पक्के हाउस इन एरियाज़ में बन रहे हैं उनमें वाटरप्रूफ मटेरियल यूज़ किया जाता है प्लास्टर करने में, और जो इनकी रूफ्स होती हैं, छत होती हैं, वो स्लैंटिंग होती, ढलान वाली होती हैं, जिससे उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, बर्फ़ इकट्ठा नहीं हो पाती और वो आसानी से नीचे ढलक जाती है। इन सम एरियाज लाइक आसाम देयर इज़ हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हियर द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड and have sloping roofs. They are built on strong bamboo pillars called stilts. This prevents rainwater and water animals from entering the house. हमारे इंडिया में जो आसाम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पूरे साल बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे जो हाउस होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बैम्बू के पिलर्स पे बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ओके, और ये जो पानी में हमारे एनिमल्स होते हैं लाइक स्नेक हैं और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, जो वो सब हमारे घर के अंदर आ जाएंगे अगर हम सीधे जो है ज़मीन से हमारा घर जुड़ा होगा, है ना। तो उनसे बचाने के लिए हम लोग बैम्बू पिलर्स पे हाउसेस बनाते हैं आसाम में, जिन्हें हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं, और वो हमें पानी हमारे घर में अंदर आने से रोकता है, एनिमल्स अंदर आने से रोकता है, जो हमें इन सब चीज़ों से सुरक्षा देता है। इन हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान, हाउसेस इन द रूरल एरियाज आर मेड ऑफ मड। जो राजस्थान है, तुम्हें पता है ये कहाँ है? डेजर्ट में है और वहाँ पे बहुत गर्म होता है। तो यहाँ के जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो घर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर थिक, मोटी मोटी दीवारें मिट्टी की बनाई जाती हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ ग्रास एंड थॉर्नी बुशेस, और जो इनकी छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियाँ, ग्रास, इन सब से ढक दी जाती हैं, उनसे बनाई जाती हैं। Such a house remains cool even in the hot weather. और इस तरह के घर भयंकर गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। Now come to the next page. Here you can see hut and juggi in Aslam. Yes, this is house with sloping roof, and this is still house in Assam. Now next,
Can we live in house made of ice? वाओ, रह सकते हो वहाँ पे? ठंड लगेगी, क्या होगा तब? Yes, people of Iceland make their houses with snow. जो आइसलैंड में रहते हैं वो क्या वुड के घर में रह पाएंगे? वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होगा, इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा कि वहाँ के हाउस के लिए हमें स्पेशल मटेरियल चाहिए। तो आइसलैंड में रहने के लिए हमें आइस ही चाहिए। सो वहाँ के लोग क्या करते हैं? स्नो से अपना घर बनाते हैं। सच हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज। इस तरह के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। सम पीपल love to explore nature. They go for camping in the jungles or mountains and live there for a few days. They stay there in tents. The tents are houses made of a thick cloth called canvas. There are certain other special houses where travelers and tourists stay for sometimes. Some examples are: number 1, houseboats. Houseboats are houses built on boats. These houses float on water. They can move around in water. People live in them for fun and enjoyment. जो हाउस बोट्स होती हैं उन पे हाउसेस बनते हैं। ओके, जो बोट्स होते हैं उन पे हाउसेस बनते हैं और उन्हें हम हाउस बोट्स कहते हैं। दीज हाउसेस फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी में तैरती हैं और कहीं पे भी पानी में मूव होती हैं। पीपल लिव इन देम फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट। कितना मज़ा आता होगा जब इसमें रहते होंगे। अहमद ओन अ हाउस बोट। द हाउस स्टैंड इन डल लेक ऑफ श्रीनगर। अहमद ने अपनी एक हाउस बोट ली है, खरीदी है, और वो कहाँ पे खड़ी है? डल लेक ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर, यस, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में बहुत ही खूबसूरत लेक है, झील है, जिसका नाम है डल झील। तो उसकी हाउस बोट कहाँ है? डल लेक में। Ahmad and his family rents out this house to the tourists. अहमद और उसकी जो फैमिली है वो जो टूरिस्ट आते हैं, जो वहाँ घूमने आते हैं लोग, उन्हें रेंट पे देती है। वो वहाँ रुकते हैं। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो हम लोग कहीं ठहरेंगे ना, तो होटल्स वगैरह में ठहरते हैं। इसी तरह लोग हाउस बोट्स में भी ठहरते हैं। They have decorated the house beautifully. The rooms are fitted with carpets. The wood carving on the furniture is very beautiful. The walls of the room are decorated with sceneries. पूरा घर बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने सजा रखा था। कैसा था? उनकी जो कारपेट बिछा रखे थे उन्होंने, और जो वुड थे, वहाँ का जो फर्नीचर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। उन्होंने सीनरी से अपने रूम्स की वॉल्स को डेकोरेट कर रखा था। एंड सेम श्रीनिवास लिव्स इन केरला। हिज फैमिली ऑल्सो ओन अ हाउस बोट। हिज फैमिली अर्न्स मनी बाय गिविंग देयर हाउस बोट ऑन रेंट। एवरी ईयर अ नंबर ऑफ टूरिस्ट come to Kerala. They stay in the houseboats for a few days and enjoy the beauty of the sea. Now come to the next page, students. Here you can see the picture of igloo, and this is a tent house. Now you can see houseboat. Yes, drawing room of the houseboat you can see here, and this is bedroom. Okay, now come to the next. Next heading is caravan. There are some people who love to travel. They keep on moving from one place to another. They build their house on wheels. Such a house is called caravan. बहुत से लोग एक प्लेस पे नहीं ठहर पाते, वो मूव किया करते हैं एक जगह से दूसरी जगहों पे।
तो ऐसे लोग अपना घर कहाँ बनाते हैं? व्हील्स पे बना लेते हैं। पहले बंजारे हुआ करते थे जो अपना घर व्हील्स पे रखते थे, क्योंकि वो एक जगह कहीं नहीं ठहरते थे, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, घूमा करते थे। ओके, सो अर्लियर अ कारवा वॉज पुल्ड बाय अ हॉर्स, nowadays they can be driven just like a car, a bus। पहले जो कारवां होते थे वो घोड़े, बुल्स भी होते थे, हॉर्स भी होते थे, इनसे जो है उनकी कार्ट को जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब तो ये ड्राइव करते हैं जैसे कार और बस की तरह। ओके, नाउ cleaning and decorating the house, this is very important thing students, now listen it very carefully। Our house is a special place for us, yes, you know, a clean and beautiful house provide a feeling of peace and joy। अगर हाउस सुंदर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तो क्या तुम्हारा वहाँ मन लगेगा? तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन अगर तुम्हारा जो बेड है वो एकदम बिल्कुल, वहाँ बुक्स भी पड़ी हैं, वहाँ तुम्हारे क्लोथ्स भी पड़े हैं, वहाँ तुम्हारे टॉयज़ भी पड़े हैं, तुम कहाँ लेटोगे? एक बार लेट भी जाओगे लेकिन तुम्हें वो नींद नहीं आएगी जो एक नीट एंड क्लीन बेड पे आएगी, है ना? सो वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे। हाउ कैन वी डू दिस? नाउ स्टार्ट रीडिंग स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 1, all the things should be kept at places fixed for them। यस, बहुत बुरी आदत होती है छोटे बच्चों की, स्पेशली पढ़ा लिखा, कॉपी किताबें बंद करी, बेड पे छोड़ा और भाग लिए, बस छूट गए, खेलने दौड़ पड़े। कहाँ रखना है कोई मतलब नहीं। लो, अभी हम कुछ और खेल रहे थे, वो फ्रेंड आ गया बाहर बुलाने बास्केटबॉल खेलने के लिए, बस दौड़ पड़े। जो घर में खेल रहे थे वो टॉयज हमने ऐसे ही छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं। नहीं, क्या करना है, उनका एक फिक्स्ड प्लेस हमें बनाना है और हमें वहीं पे रखना है। ओके, डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन डेली टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अपने घर की जो खिड़की और दरवाजे हैं इनको दिन में खुला रखना चाहिए, क्योंकि जो हमें फ्रेश एयर चाहिए वो तो बाहर ही है ना बेटा। जब हम विंडोज़ ओपन करेंगे तभी तो वो अंदर आएगी। सनलाइट घर के बाहर है, विंडोज़ और डोर्स ओपन करने पे ही सनलाइट अंदर आएगी, और सनलाइट किल्स जर्म्स। जो सनलाइट है वो जर्म्स को किल करती है। ना पॉइंट नंबर 3, फर्नीचर, विंडोज़, डोर्स, रेलिंग्स and other things should be cleaned every day to remove dust। रोज हमें इनकी क्लीनिंग करनी है। जो भी हमारे घर में फर्नीचर है, विंडोज हैं, डोर्स हैं, रेलिंग्स हैं, इन सब को हमें रोज क्लीन करना है, उससे डस्ट को रिमूव करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लोर ऑफ द रूम्स शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड डेली। डेली वहाँ पे धोया और पोछा जाना चाहिए। जो रूम्स के फर्श होते हैं, फ्लोर होते हैं, उनकी बात की जा रही है। नाउ नेक्स्ट, द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द किचन शुड बी क्लीन्ड एवरी डे सो दैट ऑयल डज नॉट गैदर ऑन देम। अ क्लीन किचन कीप्स अवे कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स। जो भी किचन में वॉल्स हैं, फ्लोर है, उन सब को हमें डेली का डेली क्लीनिंग उनकी करनी चाहिए, जिससे उनमें कोई भी चिकनाई इकट्ठा ना हो पाए। और किचन अगर साफ नहीं होगा तो क्या होंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, कॉकरोचेस आएंगे। तुमने ऐड भी देखा होगा, देखो विम बार का ऐड, रात में थाली छोड़ दी और उसमें कौन आ गया, कॉकरोच आ गया। अगले दिन छोटू की तो स्कूल की छुट्टी हो गई। तुम भी यही चाहते हो, है ना? नो, मम्मा से कहना है कि डेली किचन को क्लीन रखना है, जिससे कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स दूर रहें। Bathrooms should be cleaned every day and the floor should be kept dry। अगर बाथरूम भी गीला रहेगा तो सबसे पहले तो वो स्लीपरी हो जाएगा, हम फिसल सकते हैं। और दूसरी चीज़,
हमेशा जो गीली चीज़ें होती हैं उनमें जर्म्स जल्दी डेवलप होते हैं, और स्पेशली टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, इन सब में तो ज़रूर। तो इनको डेली का डेली हमें क्लीन करना है। द गार्बेज शुड बी केप्ट इन कवर्ड डस्टबिन। ओपन रखेंगे तो क्या होगा? जर्म्स इधर से उधर फ्लाइज के थ्रू बैठेंगे, इधर से उधर जाएंगे, और हम क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स, rotten fruits and vegetables, waste paper, cloth and dry leaves should be thrown in a one dustbin. Plastic waste, broken glasses, etc. should be thrown in another dustbin. क्यों ये बात कही गई? प्लास्टिक मटेरियल्स या ग्लास मटेरियल्स को अलग, और वेजिटेबल पील्स, गार्बेज में ये रॉटन फ्रूट्स, ये सब एक डस्टबिन में अलग क्यों फेंकने की बात की गई? इसलिए क्योंकि जो गार्बेज हम दो तरह से करेंगे, जिसमें हम वेजिटेबल्स, पील्स और रॉटन मटेरियल्स ये सब रखेंगे, वो कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे। अगर उसी में हम प्लास्टिक, ग्लास ये सब डाल देंगे तो क्या होगा? एनिमल्स को हार्म पहुंचेगा, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। इसलिए दो डस्टबिन में, अलग अलग डस्टबिन में ये सब चीज़ें डालने को कही गई हैं। ठीक है। Now, these should be handed over the garbage man every day. और ये नहीं कि मैंने कूड़ा उठाया और घर के बाहर उसे डंप कर दिया। No, हर किसी कॉलोनी में गार्बेज मैन आते हैं और हमें ये उन्हें देना है। Okay? So, here is one activity, students. How can you answer the following questions? Now, you can do it yourself. Now, come to the next page. People decorate their houses in different ways. Some people decorate their houses by painting colorful designs on the walls and floors. Some people decorate their houses with leaves, flowers, and candles. You can see here. Yes. See here. यहाँ पर वॉल्स पे तुम्हें पेंटिंग दिख रही होगी, एंड हियर फ्लोर पे दिख रही है तुम्हें। ठीक है, जैसे रंगोली कहते हैं। ये केरला में बहुत ही फेमस है। केरला के हर घर में तुम्हें रंगोली ईच एंड एवरी डे मिलेगी। और राजस्थान जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसी तरह के मड हाउसेस होते हैं, और उनको वो लोग इसी तरह डिज़ाइन करके रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर लेसन इज़ completed now. Read this chapter 2 times and do practice. God bless you. Bye bye.